Hello students, I Dipali Mehta welcomes you all on my YouTube channel Smart Learning. This is my 13th lecture of bookkeeping and accountancy for SYDC students of Maharashtra as per revised syllabus 2021. Students, till now we have solved 3 questions of partnership final account. Today we are going to solve 4th question of partnership final account. So here is the question. Pause your video screen and note down the question. Let us start with the marking of the question. Students, this is the first question of your practical problems, that is unsolved questions. In this question, I have made some changes. I have not taken the question as it is. Now let us start with the question. Amit Bhai and Narendra Bhai are in partnership sharing profit and losses equally. You are required to prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. The trial balance is given as on 31st March 2019. Okay. Let us start with the marking of the trial balance. First thing is given is plant and machinery. Plant and machinery कहाँ पे जाएगा? Asset. Then factory building. Now it doesn't make any difference whether the word has been used factory or just a building. After all, it is an asset. So factory building is our asset, so it will go to balance sheet asset side. Sundry debtors, assets. Purchases, trading account, debit side. Bad debts, PD, formula, right? Then insurance. Insurance कहाँ पे जाएगा? Profit and loss account, debit side. 10% government bonds purchased on 1st October 2018. So 10% government bonds is an asset. It is an investment for us. Okay, but there is a hidden adjustment on it. क्योंकि percentage दिया है, the 10% and the purchase date is given. October में हमने purchase किया है. So from October to March we are supposed to charge interest for 6 months. Okay. अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में देख लेते हैं. देयर इज एनी इंटरेस्ट? नो, देयर इज इंटरेस्ट इज नॉट गिवन. ओके, सो दैट मीन्स कि पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है. ओके, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? नाउ ये हिडन एडजस्टमेंट है, लेकिन हमें याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा नहीं. इट विल बी रिटर्न सेपरेटली. सो इस पे हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है? रिसीवेबल है, राइट? तो पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एसेट्स में जाएगा. और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड. यहाँ पे आपको कोई टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू लीव द लाइन. हम लोग ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ऐड नहीं करेंगे, उसे डायरेक्टली एसेट्स में लिखने वाले हैं. इम्पोर्ट ड्यूटी. इम्पोर्ट ड्यूटी कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, बिकॉज इम्पोर्ट इज रिलेटेड टू परचेजिंग ऑफ गुड्स. ओके, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी आता है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. लीगल चार्जेस, इट इज ऑल रिलेटेड टू ऑफिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. मोटिव पावर, इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, so trading account, debit side. Then warehouse rent कहाँ पे जाएगा? Profit and loss account, debit side. Cash in hand, asset. Cash at bank, asset. Advertisement for 2 years with effect from 1st January 2019. ना सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. अभी हम लोगों ने अब तक जो एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट किया था, राइट, वो कौन सा था? 2 years, 3 years ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ था. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2019 बोला है. ओके, तो यहाँ पे इट इज़ ओनली बीन यूज फॉर 3 months. ये मैंने 9th वीडियो में दोनों एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स लिए थे. अगर आपको सिर्फ फुल ईयर के हिसाब से प्रीपेड बोला हो, या फिर आपको फ्यू मंथ्स वी हैव यूटिलाइज एंड रेस्ट ऑल इज प्रीपेड, वैसे दोनों एग्जाम्पल्स मैंने अच्छे से लिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं. ओके, नाउ यहाँ पे क्या है? जनवरी 2019 से 31st मार्च 2019 उतना ही हमारा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ है, राइट? रेस्ट ऑल इज प्रीपेड. ओके, यानी कि 1 year एंड 9 months का क्या है? प्रीपेड है. ठीक है, तो प्रीपेड है तो क्या इफेक्ट जाएगा? एक तो एडवर्टाइजमेंट में से लेस हो जाएगा, यानी लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एसेट. ठीक है, यहाँ पे हमें टिक मार्क करना पड़ेगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में से क्या होगा? माइनस. ऑलराइट, ये इसका कैलकुलेशन कैसा होगा मैं आपको डेफिनेटली वो वर्किंग नोट में एक्सप्लेन करूँगी. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट इज सैलरीज. नाउ सैलरीज कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. फैक्ट्री रेंट. नाउ हियर द वर्ड हैज बीन यूज फैक्ट्री. अगर सिर्फ रेंट होता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन फैक्ट्री रेंट वर्ड यूज किया है तो ये कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. देन ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड. देन दोनों का वही इफेक्ट आएगा. फर्नीचर. फर्नीचर इज एन एसेट फॉर अस. और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यानी खुद का प्रॉपर्टी है तो कहाँ पे जाएगा? एसेट्स में जाएगा. नाउ ऑन द क्रेडिट साइड,
कैपिटल अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट जाएगा पीसीसी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों में हम लिख देते हैं। सेल्स कहाँ पे जाएगा, पीसी। देन बिल्स पेबल कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज। देन डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज। आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वो ऑलवेज ओल्ड आरडीडी रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मूला। बैंक लोन लायबिलिटीज, और परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेसेस। सो पुट अ टिक मार्क ऑन परचेसेस, एक हम डॉट कर देते हैं ताकि हमें उस पर लाइन लीव करना है इसलिए। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 was valued at 43,000। सिर्फ एक ही प्राइस दिया है, सो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और एसेट्स, राइट। ये तो हमें अच्छे से याद हो चुका है। देन सेकेंड इज अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 was stolen। नाउ स्टोलन हो या लॉस बाय फायर हो, अनइंश्योर्ड गुड्स है। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट फॉर द सेम। सबसे पहले तो गुड्स बिजनेस में से क्या हुआ है, गया है, राइट। सो बिजनेस में से गुड्स गया मतलब पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। और ये अनइंश्योर्ड है, दैट मीन्स उस पर हमने जितना भी मनी स्पेंड किया है उसे मैन्युफैक्चरिंग करने में या उसे परचेज करने में, वो पैसा भी हमारा क्या हुआ, लॉस्ट हो गया, यानी उसका भी हमें नुकसान हो गया है, राइट। सो इफ उसका भी लॉस हुआ है तो वो हमें कहाँ पे डालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल नहीं है। तो पूरा 8,000 हमारे लिए क्या है, लॉस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। नाउ क्लियरली बोला है आरडीडी है मतलब ये न्यू आरडीडी है और डेटर्स पे क्रिएट करना है, तो क्या इफेक्ट होगा उसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मूला, ठीक है। और लेस फ्रॉम क्या होगा, डेटर्स, और डेटर्स हमारा कहाँ पे होता है, एसेट्स में, ठीक है। सो हम सन्ड्री डेटर्स पे टिक मार्क कर देते हैं। अभी तक हमें कोई अदर एडजस्टमेंट या फिर हमें और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, Mr. Patil, our customer, became insolvent and could not pay his debts of ₹500। now इसका मतलब क्या हुआ, पाटिल हमारा कस्टमर है तो कस्टमर मतलब क्या हुआ, डेटर। वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट, यानी कि बैंक करप्ट हो चुका है, उसका दिवालिया निकल गया है। जो हमारे डेट्स है वो पे नहीं कर सकता है, मतलब ये हो गया फर्दर बैड डेट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको फर्दर बैड डेट देने का डिफरेंट तरीका है, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज किया है, लेकिन कस्टमर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाए, वो हमारे डेट्स नहीं चुका सकता है, मतलब हमारा पैसा जो डूब गया है वो क्या है, हमारा बैड डेट्स है, ठीक है। ये हमारा फर्दर बैड डेट्स हो गया। तो अभी अभी मैंने बोला था कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है फर्दर बैड डेट्स की, राइट। तो पहले फर्दर बैड डेट्स का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम लोग कौन सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, न्यू आरडीटी का। इफेक्ट्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मूला और लेस फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। और वो डेटर्स हमारा कहाँ पे होता है, एसेट्स में। सो आई पुट वन मोर टिक मार्क ओवर हियर। सो 2 टिक मार्क्स हो गए यहाँ पे डेटर्स पे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ एडजस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th June 2019। ओके, नाउ अकाउंट्स पे जब आपको एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं, आप सोचते हो कि क्वेश्चन है एज इट इज पढ़ लो, ओके, घाई घाई में आप पढ़ लेते हो, लेकिन अप टू, बाय टू, ये सब वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ओके। अब यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट है वो मैंने लिया है, यस, क्वेश्चन नंबर 9 में से लिया है जो पेज नंबर 46 पे है, ओके। बट वहाँ पे उसका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा गलत दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी वहाँ पे, लेकिन वो जो कैलकुलेट किया है वो गलत किया है उस क्वेश्चन में। जब मैं आपको टेक्स्ट बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सारे चेंजेस भी करवा दूंगी कि टेक्स्ट बुक में कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है। फिर भी आप नोट करके रखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 में पेज नंबर 46 पे जो इंश्योरेंस का कैलकुलेशन दिया है उसके आंसर में वो गलत है, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th June 2019, यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका पैसा हमने 30 जून तक पे करके रखा है, राइट। यानी हमारा ईयर एंडिंग तो कब हो जाता है, मार्च में, यानी मार्च तक का हमने 12 महीने का तो पे किया ही है, प्लस हमने और 3 मंथ्स का पे करके रखा है एडवांस में, ठीक है, यानी अप्रैल, मई और जून। तो जब आप इंश्योरेंस का कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये जो 1800 रुपये पे किए गए हैं
1800 ये जो पेमेंट हुआ है दिस इज फॉर 15 मंथ्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, अप टू। अगर यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज किया होता दैट इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2019, तो इसका मतलब ये होता कि ये 1800 रुपये 12 महीने के लिए ही पेमेंट हुआ है। ओके, लेकिन पॉलिसी हमने क्या की है, हमने कब ली होगी, जुलाई से ली होगी, इसलिए जुलाई टू जून उसका ईयर एंडिंग है इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, आप अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन। अगर आप समझे बगैर कुछ भी करेंगे एडजस्टमेंट का इफेक्ट तो वो गलत हो सकता है। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वैसा मैं एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडिंग वाला भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लूँगी, जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो क्वेश्चन में मैं डाल दूँगी। फिलहाल चलिए इसी की बात करते हैं, इसी पे फोकस करते हैं। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। ओके, यानी 1 अप्रैल 2018 से लेकर हमने जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो 30 जून 2019 तक का पेमेंट कर दिया है। लेकिन हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 है, तो हमें क्या करना है, 3 मंथ्स का एडवांस है, तो ये 15 महीने का 15 मंथ्स का दिस अमाउंट इज पेड। सो 1800 को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 15 और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 3। ओके, इसका कैलकुलेशन भी हम वर्किंग नोट में करेंगे ताकि हमें पता चले। चलिए पहले फिलहाल तो प्रीपेड है ये, राइट, तो प्रीपेड है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, यानी इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट्स में। ठीक है, क्लियर विद दिस, पुट वन टिक मार्क ऑन इंश्योरेंस। देन नेक्स्ट, depreciate factory building by rupees 2500 and furniture is reduced to rupees 1,95,000. Now this is also very interesting adjustment। ये भी पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया है, ये इंश्योरेंस अप टू 30 जून वाला भी ये पहली बार नया इंट्रोड्यूस किया है सिलेबस में। वैसे ये डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय टू, ये भी फाइनल अकाउंट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। सो डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय रुपीज 2500, यानी 2500 से हमें उसे डेप्रिशिएट करना है। और हमें आगे क्या बोला है, कैन फर्नीचर इज रिड्यूस टू रुपीज 1,95,000, यानी फर्नीचर 1,95,000 हो गया है। समझ में आया, तो दोनों अलग अलग है। 2500 इज अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अ डेप्रिसिएशन, यानी हम सीधा सीधा फैक्ट्री बिल्डिंग में से 2500 माइनस कर देंगे। और फर्नीचर इज रिड्यूस टू 1,95,000, यानी फर्नीचर का वैल्यू है 1,95,800, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 जो रुपीज़ है वो हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है। समझ में आया ये आपको, ठीक है। सो यहाँ पे हमें उसकी आउटर कॉलम की वैल्यू दी हुई है। ओके, बट आफ्टर ऑल इट इज द डेप्रिसिएशन ट्रांजैक्शन ओनली, राइट। सो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम एसेट। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड। सो हम लोग फर्नीचर पे भी टिक मार्क कर देते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग पे भी टिक मार्क कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटिव पावर इंक्लूड्स रुपीज 1,500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। ना मोटिव पावर में 1,500 डिपॉजिट के पैसे हैं, तो डिपॉजिट इज सॉर्ट ऑफ एडवांस ओनली। ओके, अगर हम कहीं पे भी पहले डिपॉजिट जमा करते हैं, लाइक हॉस्पिटल में अगर हम एडमिट हो रहे हैं तो पहले हम डिपॉजिट जमा करते हैं, फिर हम लोग पेशेंट को एडमिट करते हैं। या फिर अगर हम लोग कहीं पे लॉकर लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग एडवांस में पहले डिपॉजिट देते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट इज सॉर्ट ऑफ थिंग जो हमें आगे जाके वापस मिल जाएगा। जब भी हम वो लॉकर सरेंडर करेंगे तो वो डिपॉजिट हमें क्या हो जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। ओके, सो लाइक दैट यहाँ पे भी हमने डिपॉजिट किया है, जो एडवांस सॉर्ट ऑफ थिंग है ये, तो ये मोटिव पावर में से क्या हो जाएगा, लेस। सो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट। सो मोटिव पावर पे टिक मार्क कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको मार्किंग समझ में आ गया होगा, एडजस्टमेंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए फॉर्मेट अपना ड्रॉ कर लीजिए अपने नोटबुक में, लाइक दिस। ऑन द टॉप राइट इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। Okay, trading account for the year ended 31st March 2019, profit and loss account for the year ended 31st March 2019. Then partners capital account, अमित भाई नरेंद्र भाई पार्टनर्स कैपिटल में नाम लिख दीजिए दोनों कॉलम्स में, एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. लेट अस स्टार्ट विद द पोस्टिंग। सबसे पहले मैं क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे जाएगा, एसेट। ओके, प्लांट एंड मशीनरी आउटर कॉलम में जाएगा 2,80,000 एज देयर इज नो एडजस्टमेंट। देन फैक्ट्री बिल्डिंग,
फैक्ट्री बिल्डिंग भी एसेट्स में ही जाएगा, उस पर एडजस्टमेंट है, राइट इट इन द इनर कॉलम, अमाउंट इज 75,000. ठीक है. नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स भी एसेट्स में जाएगा, राइट इट इन द इनर कॉलम, 28,700. Two adjustments are there, leave 3 lines. Then purchases. Now purchases जाएगा trading account में. Now students, the one thing is very unique in this question is that there is no opening stock given in this question. ओरिजिनली भी इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, राइट. फिर भी हम लोग जो एज यूजुअल हमारी हैबिट है, तो 1 लाइन हम लोग लीव कर देते हैं, बट एज देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक. नाउ 2 परचेसेस, okay, write it in the inner column as there is an adjustment, 85,500. Leave 1 line. Then bad debts, तो profit and loss account debit side में जाएगा, always leave first line in the profit and loss account, right, as we don't know that there will be a gross profit or a gross loss. So 2 bad debts, add further bad debts, हमें formula लिख देना है पूरा, add new RDD, leave 1 line and write less old RDD. Now 2 bad debts हमें जो दिया है वो यहाँ पे फर्स्ट में इनर कॉलम में आ जाएगा, 500 रुपीज़ इनर कॉलम. देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, टू इंश्योरेंस इनर कॉलम 1,800. लीव 1 लाइन. चलो इसके बाद दिया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, राइट. सो सन्ड्री डेटर्स के नीचे में 3 लाइन्स लीव करने हैं, उसके बाद लिखिए 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ब्रैकेट में परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018, ब्रैकेट क्लोज. और ये जाएगा आउटर कॉलम में 40,000. अब इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट हम लोग इमीडिएटली ही कर देते हैं, राइट. सो नाउ 40,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स हमें कैलकुलेट करना है, तो 40,000 पे 10% मतलब कितना हुआ, 4,000. ठीक है. और उस पर 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, यानी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ, तो यानी कितना हो जाएगा, 2,000, राइट. सो यहाँ पे एसेट्स में ही लिखना है, सिर्फ हमें ऐड नहीं करना है, दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके. सो इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड सीधा आउटर कॉलम में जाएगा, 2,000, राइट. और अभी इसी का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस में भी फर्स्ट लाइन लीव कर दीजिए, उसी के बाद लिखिए दैट इज, बट यहाँ पे क्या लिखना है हमें, बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिकॉज हमें पहले से कोई इंटरेस्ट नहीं दिया था, राइट. तो हम ऐड तो नहीं कर सकते, तो मैंने डायरेक्टली उसे लिख दिया बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ओके, समझ में आया ये आपको. देन नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ड्यूटी. ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टू इम्पोर्ट ड्यूटी. ठीक है. जहाँ पे भी एडजस्टमेंट है आप प्लीज़ लाइन एक उसे अंडरलाइन करते जाइएगा, ताकि आप उसमें आगे पीछे अमाउंट ना लिखते हैं. सो 1,800 आउटर कॉलम, इम्पोर्ट ड्यूटी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. लीगल चार्जेस, so 2 legal charges, so outer column as there is no adjustment on legal charges, 2,000 amount outer column. Then motive power, trading account में जाएगा, 2 motive power inner column में 12,000 inner column, leave 1 line. warehouse rent जाएगा profit and loss account में, so 2 warehouse rent outer column as there is no adjustment, 2,200. Then cash in hand assets में जाएगा, outer column amount is 20,000. Then cash at bank, again amount outer column में जाएगा 70,000 as there is no adjustment. Okay. Then advertisement, profit and loss account में जाएगा debit side, to advertisement, write it in the inner column as there is an adjustment, hidden adjustment. तो हम लोग hidden adjustment अभी इसको clear कर लेंगे, पहले उसका calculation देख लेते हैं. Now advertisement, ठीक है, टोटली हमें कितना दिया है, 10,000 दिया है, दैट इज फॉर 2 years. ओके. तो अगर मैं इसे डिवाइड बाय 2 years करती हूँ, तो आई विल गेट एन आंसर ऑफ 5,000 फॉर एनम. ओके. बट इन दिस केस दिस एग्रीमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज फ्रॉम 1 जनवरी 2019, यानी जिस भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो हमारा 1 Jan से स्टार्ट हो रहा है. तो 1 Jan to 31 March, यानी 3 months का ही कॉन्ट्रैक्ट यूटिलाइज हुआ है, बाकी का सब अभी भी क्या है, प्रीपेड है. ठीक है. तो इसके आप कैलकुलेशन के 2 तरीके कर सकते हो, या तो आप पहले प्रीपेड वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या फिर आप आउटर कॉलम का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. आई विल शो यू बोथ द थिंग्स. ओके. ये मैंने 9th वीडियो में भी सेम बताया है, दोनों तरीका मैंने बताया हुआ है. नाउ 5,000 इज फॉर एंटायर ईयर. ओके. और मेरा 3 months का ही यूटिलाइज हुआ है, राइट. दिस इज फॉर 12 months. ओके.
जस्ट नोट डाउन इन योर माइंड दैट दिस इज फॉर 12 मंथ्स. तो 6 मंथ्स का कितना होगा? 2500 इज फॉर 6 मंथ्स. ओके, एंड उसका भी हाफ 1250 इज फॉर 3 मंथ्स. ठीक है, तो मेरा 3 मंथ्स का ही एक्चुअली यूटिलाइज हुआ है, तो ये मेरा आउटर कॉलम का वैल्यू है. तो अगर मैं 10,000 में से 1250 यहाँ पे माइनस कर दूँ, तो दैट मीन्स कि मेरा प्रीपेड वैल्यू कितना है? 8750. ओके, तो या फिर मैं 1250 भी मिल गया मुझे, तो भी मैं आउटर कॉलम में डाल दूंगी, तो वहाँ पे भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एक्सपेंस फाइंड आउट कर लिया. अब 10,000 में से वो मैंने एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो मेरा वैल्यू क्या हो गया? प्रीपेड वैल्यू 8750 प्रीपेड वैल्यू हो गया. समझ में आया ये आपको? ठीक है, आप यहाँ पे भी आपका कैलकुलेशन स्टॉप कर देते हो तो भी चलेगा कि 1250 3 मंथ्स का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आप 1250 अगर आउटर कॉलम में डाल देते हो, ठीक है, तो मतलब आपका ये 3 मंथ्स का एक्सपेंडिचर आउटर कॉलम में आ गया, तो डिफरेंस आपका क्या है? प्रीपेड वैल्यू है. या फिर आपने यहाँ पे 1250 जो आपको 3 मंथ्स का एक्सपेंस मिला वो 10,000 में से ये माइनस कर दो. ओके, तो ये आपको प्रीपेड वैल्यू मिल जाएगा कि आपने 10,000 में से minus 1250 कर दिया. So your answer of prepaid value is 8750. Okay, anyways you can do it as per your convenience, you can do it. ठीक है, बट आंसर सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे? सो 8750 इज माई प्रीपेड वैल्यू. सो लेस प्रीपेड 8750. ओके, और आउटर कॉलम में 1250. समझ में आया ये आपको? ठीक है, अब वैसे ही एसेट्स में जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, आउटर कॉलम में 8750. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 मंथ्स का ही हमारा एक्सपेंडिचर है, बाकी सब हमारा क्या है? प्रीपेड वैल्यू है. ओके, उसके बाद हमें क्या दिया है? सैलरीज, वो भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. सो टू सैलरीज, सैलरीज आउटर कॉलम में एज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन सैलरीज 3800 आउटर कॉलम. फैक्ट्री रेंट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में एज दिस इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, आउटर कॉलम में 1500. ओके, देन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा. राइट ओवर हियर टू ड्राइंग्स, मेंशन द अमाउंट 2400 and 3200. Next is furniture. Furniture जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड. राइट हियर फर्नीचर, इनर कॉलम 1,95,800. ओके, फर्नीचर के नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखिए. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आउटर कॉलम एज देयर इज नो एडजस्टमेंट 61,700. ओके, डेबिट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया. अब क्रेडिट साइड का पोस्टिंग शुरू करते हैं. क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमें दिया है कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट है 3,50,000 एंड 3 लाख. ओके, उसके बाद हमें दिया है सेल्स. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय सेल्स एज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन सेल्स 1,80,000 आउटर कॉलम में जाएगा. द नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल लायबिलिटीज में जाएगा. लीव फर्स्ट 5 लाइन्स एंड देन राइट बिल्स पेएबल एज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन बिल्स पेएबल. राइट इट इन द आउटर कॉलम 8,500. देन डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड ही दिया है. सो बाय डिस्काउंट as there is no adjustment, outer column 1,200. Then creditors, liabilities में जाएगा creditors outer column as there is no adjustment 38,500. Then RDD, this is old RDD formula हम लोगों ने already लिखा हुआ है, just mention the amount over there 2,700 inner column. बैंक लोन liabilities में जाएगा. there are बैंक लोन पे भी hidden adjustment हो सकता है, बट यहाँ पे ना तो परसेंटेज दिया है ना तो डेट दी है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एनीथिंग. ओके, अदरवाइज इफ परसेंटेज इज गिवन एंड द डेट इज गिवन देन वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट लाइक वी डिड फॉर द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ठीक है, तो आउटर कॉलम में बैंक लोन लिख दिया मैंने 15,000. परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, इनर कॉलम 2,000. सो 85,500 में से 2,000 माइनस हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में बैलेंस जाएगा 83,500. ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस का जो पोस्टिंग है वो भी कंप्लीट हो गया, एंड अलॉन्ग विद दैट वी फिनिश्ड आवर 2 hidden adjustments as well. Now let us start with the adjustments given below the trial balance. First adjustment is closing stock. So closing stock ट्रेडिंग अकाउंट में 4th क्लास लाइन में लिख बाय क्लोजिंग स्टॉक. आउटर कॉलम में वैल्यू डाल दीजिए 43,000. ठीक है, एक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. क्या लिखना है? सिर्फ आपको क्लोजिंग स्टॉक.
क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम में 43,000, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वॉज स्टोलन। तो बिजनेस में से गुड्स गया, राइट, तो बिजनेस में से गुड्स गया तो पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सो बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, स्टोलन है यानी कि चोरी हो गया है तो थेफ्ट, ओके, आउटर कॉलम में जाएगा 8,000। सो बिजनेस में से गुड्स गया, अब चोरी हो गया तो उस पर हमने जो मॉनिटरी वैल्यू स्पेंड किया था यानी कि जो पैसा हमने स्पेंड किया था वो भी हमारा नुकसान हो गया। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू लॉस बाय थेफ्ट। यहाँ हमें गुड्स वर्ड इस्तेमाल करना नहीं है, डायरेक्टली हमारा स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर से शुरू होगा, ठीक है। सो 8,000 आउटर कॉलम, ओके। सो यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, टू लॉस बाय थेफ्ट 8,000 सीधा आउटर कॉलम में जाएगा, और यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट 8,000 आउटर कॉलम में, राइट। चलिए, नाउ थर्ड एडजस्टमेंट इज फॉर आरडीडी और फोर्थ एडजस्टमेंट है फॉर द बैड डेट्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डेटर्स पे, फॉर द बैड डेट्स, क्योंकि हमें अदर एडजस्टमेंट्स दिए नहीं है। अगर अदर एडजस्टमेंट दिया होता तो सन्ड्री डेटर्स पे सबसे पहले अदर एडजस्टमेंट, फिर फॉर द बैड डेट्स और फिर न्यू आरडीडी, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करना है, सो लेस फर्दर बैड डेट्स, ओके। फर्दर बैड डेट्स हमारा कितना है 500, सो 28,700 में से 500 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस कितना बचता है 28,200। फर्दर बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अगर हमें अलग अलग एडजस्टमेंट दिया है तो हम लोग अलग अलग ही इफेक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 500 रुपीज़ फर्दर बैड डेट्स, ओके। चलिए अभी थर्ड एडजस्टमेंट करते हैं, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी यहाँ पे डेटर्स का वैल्यू हमारा नेट डेटर्स कितना है 28,200 हमारा नेट डेटर्स है। अब 28,200 पे हमें 2% निकालना है, तो अगर हम 2% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 28,200 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2/100 लेके हम करेंगे तो 2 जीरोस कट हो जाएंगे, राइट। सो 282 मल्टीप्लाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, ओके। 282 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम लोग 2 करते हैं तो हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा, लेस 2% न्यू आरडीडी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 564। अब ये 28,200 में से 564 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या बचेगा 27,636, ऑलराइट। सो अभी हमारा न्यू आरडीडी जो है 564 वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे न्यू आरडीडी के सामने। अभी बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी इन सबका अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 1,564, ठीक है। सो 1,564 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ दिस टाइम ओल्ड आरडीडी इज मोर, ओल्ड आरडीडी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट जब यहाँ पे हमारा करंट ईयर का जो लॉस है दैट इज़ 1,564 है, लेकिन पिछले साल का जो हमारा सेविंग है वो एक्सेस रिजर्व है 2,700, तो यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है, यानी कि पिछले साल की सेविंग्स में से इस साल का लॉस माइनस करने के बावजूद भी हमारे पास बैलेंस बच रहा है। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में क्या आएगा, डैश, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगा तो नेगेटिव वैल्यू तो हमारा जो गेन है तो हम यहाँ पे अपोजिट साइड पे उसे लिखेंगे और उसे क्या लिखा जाएगा, बाय एक्सेस आरडीडी, ओके। यानी हमारी पिछले साल की एक्सेस यानी कि ज़्यादा आरडीडी है और वो आरडीडी का अमाउंट कितना है 1,136। 2,700 में से अगर आप 1,564 माइनस करोगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 1,136। ये समझ में आया आपको, मैं वापस रिपीट करती हूँ। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी, ये हमारा करंट ईयर का लॉस है, इस साल का लॉस है 1,564, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, ये अमाउंट में से ओल्ड आरडीडी माइनस करके आउटर कॉलम में डालते हैं, बट दिस टाइम ओल्ड आरडीडी इज मोर, यानी कि पिछले साल का हमारा जो बचा हुआ पैसा है वो ज़्यादा है और इस साल का लॉस हमारा जो है वो क्या है, कम है। तो बचे हुए पैसे में से 1,564 माइनस करने के बावजूद भी हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व बचता है, तो एक्स्ट्रा रिजर्व जो बचा उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस आरडीडी। ये हमारा फ़ायदा है, ओके। तो फ़ायदा है इसलिए पीएनएल क्रेडिट साइड में जाएगा, वरना जनरली हम अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं। समझ में आया ये आपको, ठीक है। देन
नेक्स्ट इज इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th जून 2019. ओके, अप टू 30th जून 2019 है, तो इसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट. इंश्योरेंस ना अप टू यहाँ पे बोला है, इसके लिए हम 15 मंथ्स कंसिडर करेंगे. नाउ इंश्योरेंस का वैल्यू कितना है 1800 एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 15. अगर यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग बोला होता तो हम डिवाइड बाय 12 मंथ्स ही करते, ठीक है. सो यहाँ पे 15 मंथ से अगर हम लोग 1800 को डिवाइड करते हैं, सो व्हाट विल बी द आंसर. हमारा आंसर आएगा 120 पर मंथ. सो 120 पर मंथ है, तो उसे मुझे मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है 3 मंथ्स. 3 मंथ्स अगर मैं मल्टीप्लाई बाय करती हूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 360. समझ में आया ये आपको, ठीक है. सो प्रीपेड वैल्यू इज 360. सो इंश्योरेंस प्रीपेड है, यहाँ पे लिख दीजिए लेस प्रीपेड 360 रुपीज़. यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं. 1800 में से 360 माइनस हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में वैल्यू जाएगा 1440. अब उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस. आउटर कॉलम में प्रीपेड इंश्योरेंस 360 रुपीज़. ओके. नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2500. सो फैक्ट्री बिल्डिंग में से 2500 डेप्रिसिएशन है. सो डेप्रिसिएशन हमें क्या करना पड़ेगा माइनस. सो लेस, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है तो डायरेक्टली लेस डेप्रिसिएशन 2500. ओके, 75,000 में से 2500 माइनस हुआ तो 72,500 आउटर कॉलम में जाएगा. अब फर्नीचर का वैल्यू हो गया है 1,95,000. तो ये जो 1,95,000 हमें बोला है, इट इज़ रिड्यूस टू 1,95,000, यानी वो हमारा वैल्यू हो चुका है फर्नीचर का. तो ये हमारा आउटर कॉलम का वैल्यू है. तो लेस हम लोग डेप्रिसिएशन लिखेंगे, इसका डिफरेंस. इसका डिफरेंस क्या है 800 रुपीज़ इज अ डिफरेंस. तो 800 मेरा क्या हुआ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है. अब डेप्रिसिएशन है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो यहाँ पे लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन, इसे अंडरलाइन कर दीजिए. इसके नीचे लिखिए फैक्ट्री बिल्डिंग, उसके बाद फर्नीचर. फैक्ट्री बिल्डिंग पे 2500 था और इस पे 800, राइट. सो हमारा आउटर कॉलम में वैल्यू कितना हो जाएगा 3300. चलिए आगे बढ़ते हैं. मोटिव पावर इंक्लूड्स 1500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर. तो यहाँ पे डिपॉजिट पावर मीटर का डिपॉजिट यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लेस करेंगे. सो लेस डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर. पावर मीटर इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है. सो 1500 माइनस हो जाएगा. सो आउटर कॉलम में बैलेंस कितना जाएगा 10,500, ठीक है. अभी सेकेंड इफेक्ट डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर कहाँ पे जाएगा एसेट्स में जाएगा, बिकॉज इट इज अ डिपॉजिट विच इज रिफंडेबल. सो डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर आउटर कॉलम में 1500. आई होप यहाँ तक आपको सारे इफेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अब लेट अस स्टार्ट विद द बैलेंसिंग ऑफ द फाइनल अकाउंट. First with the trading account, so I've made over here lines for total. Okay, first we'll check out the what is the balance of the credit side and what is the total of the debit side is. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करते हैं तो क्या मेरा आंसर आएगा लास्ट पोजीशन पे 0 है, सेकंड पोजीशन पे भी 0 है, थर्ड पोजीशन पे भी क्या है 0. देन फोर्थ पोजीशन पे 8 + 3 11. ओके, सो यहाँ पे 1 कैरिड हो जाएगा. देन 8 + 1 9, 9 + 4 13, तो 3 एंड कैरिड 1, सो यहाँ पे हो गया 2. सो क्रेडिट साइड का टोटल है 2,31,000. आई चेक आउट व्हाट इज द टोटल ऑफ द बैलेंस डेबिट साइड इज. सो लास्ट पोजीशन पे 0 है, सेकेंड पोजीशन पे भी 0 है, थर्ड पोजीशन पे 8 + 5 13 और 13 और ये 10, तो यानी 23. 3 यहाँ पे लिख देती हूँ, कैरेट 2 हो जाएगा, राइट. सो 2 + 3 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे 7 हो गया और 8 + 1 क्या हो गया 9. सो मेरा डेबिट साइड का टोटल आता है 97,300. सो क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है 2,31,000. सो दोनों तरफ मैं 2,31,000 यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. ओके, अब 2,31,000 में से 97,300 मुझे क्या करना है माइनस. तो मेरा आंसर क्या आएगा 1,33,700. दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन ब्रैकेट में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पे डेबिट साइड में मिला है, तो P&L में क्रेडिट साइड में लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. आउटर कॉलम में 1,33,700, ठीक है. वैसे ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्लोजिंग कर लेते हैं.
पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। लास्ट पोजीशन पे क्या है 6, सेकंड पोजीशन पे क्या है 3, थर्ड पोजीशन पे क्या है 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो 0 यानी कि 10 हो गया, तो 1 कैरिड हो गया। 3 + 1 4 + 2 6 7 और 8, यहाँ पे 8 हो गया। देन 3 और 1, यानी 1,38,036 इज माई टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। नाउ डेबिट साइड का टोटल क्या आता है। नाउ यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे क्या है 0, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है 4 + 5, ओके 9। देन थर्ड पोजीशन पे क्या है 4 + 2 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19, 1 carried, 1 + 1 2, 2 4 2 6 7 10 18, 18 + 3 21, ठीक है। सो 21,990 आया, तो ऑफकोर्स मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है, दैट इज़ 1,38,036, राइट। सो यही टोटल मुझे डेबिट साइड में भी मेंशन करना है, सो आई पुट इट ओवर हियर। अब 1,38,036 में से मुझे माइनस करना है 21,990। सो मेरा यहाँ पे बैलेंस क्या आएगा 1,16,046 इज माई नेट प्रॉफिट। अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2, जैसे अभी टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हमें क्या करना है, दोनों पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। पार्टनर्स का नाम है अमित भाई और नरेंद्र भाई, ठीक है। अब दोनों का रेशियो क्या है इक्वल, सो 1,16,046 हमें डिवाइड करना है इक्वली, यानी डिवाइड बाई 2 करना है। सो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 58,023, ओके। सो सेम वैल्यू यहाँ पे भी हमें मेंशन करनी है बिकॉज इट्स अ इक्वल रेशियो, तो 58,023। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है नेट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डायरेक्टली एक साथ ही लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली बाय नेट प्रॉफिट 58,023, सेम 58,023 नरेंद्र भाई के अकाउंट में भी, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या करना है क्लोजिंग। सो कैपिटल अकाउंट है तो ऑलवेज क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा होगा। सो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द अमित भाई, द 4,08,023 और यहाँ पे टोटल आएगा 3,58,023, ठीक है। ये सेम टोटल मैं यहाँ पे डेबिट साइड में भी लिख देती हूँ, ओके। अब 4,08,023 में से मुझे 2,400 माइनस करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। मेरा बैलेंस कैरिड डाउन क्या होगा 4,05,623, ओके। अमित भाई का आएगा ये, और यहाँ पे मुझे 3,58,023 में से माइनस करना है 3,200, तो मेरा आंसर आएगा 3,54,823। समझ में आया ये आपको। देन ये जो डेबिट साइड में डिफरेंस आया है वो क्रेडिट में जाएगा, यानी कि लायबिलिटीज़ में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल अकाउंट अमित भाई और नरेंद्र भाई। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन का वैल्यू है वही मुझे यहाँ पे इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं टोटल करती हूँ, सो व्हाट विल बी द टोटल इन द आउटर कॉलम 7,60,446, ओके। बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। पहले लायबिलिटी साइड में देख लेते हैं कि लास्ट पोजीशन पे क्या है 6, सेकंड पोजीशन पे क्या है 4, थर्ड पोजीशन पे क्या है 10 and 14, सो 4 कैरिड 1, 8 + 1 9, ओके, 9 + 8 17, 17 + 5 22, carried 2, 6 + 2 8, 8 + 3 11 and 12, carried 1 and 8. So 8,22,446 is the total of the liability side. Now the same way asset side का हम लोग टोटल करते हैं, तो लास्ट पोजीशन पे क्या है 6, सेकेंड पोजीशन पे क्या है 3, 3 + 5 8, 8 + 6 क्या हो जाएगा 14, ओके। सो कैरिड 1
थर्ड पोजीशन पे 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 7 19, 19 + 7 26, 26 + 3 29, 29 + 5 34. So carried 3. Fourth position पे 3 + 2 5. Okay, 12 7, I mean 5 + 7 12, 14, 14 + 8 22, 22 + 5 27, 28, 28 31 and 32. Okay, so 2 यहाँ पे आ जाएगा and 3 carried. Then 8 + 3 11, 7 18, 18 + 2 20, 24, 24 + 2 26, 26 + 7 33, 33 + 9 42, 42 + 6 48, 48 + 4 52. Carried 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8. Okay, so हमारा यहाँ पे टोटल मैच हो गया both liabilities and asset side 8,22,446. आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. एवरीथिंग इज क्लियर. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. And student, it is a request that you please do watch a full video, okay, and please share it to the maximum number of students, okay, and don't forget to click on the subscribe button. Keep watching, keep learning, and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Thank you so much.